actually hard to find biblical scholars with whom to compare John Goldingay. It's also difficult to sort out the kinds of adjectives you might use to describe John Goldingay, in large part because we live in an age of specialization, and yet here is a scholar who has the grasp of biblical studies, Old and New Testament, and the theology that surrounds them. Here's a biblical scholar whose profound level of scholarship is forever in the service of the church. Here's a biblical scholar who never forgets that the chief aim of good biblical scholarship is proclamation, the incarnation of the Word in people's lives. In fact, one of the most impressive parts of John Goldingay's scholarship is his non-apologetic, non-defensive approach to reading Scripture as a believer firmly embedded in the church. Having worked with him these several years, having stood with him shoulder to shoulder, what I can tell you is that he is as advertised. Daniel chapter 6. Darius divided his kingdom into 120 states and placed a governor in charge of each one. In order to make sure that his government was run properly, Darius put 3 other officials in charge of the governors. One of these officials was Daniel, and he did his work so much better than the other governors and officials that the king decided to let him govern the whole kingdom. The other men tried to find something wrong with the way Daniel did his work for the king, but they could not accuse him of anything wrong because he was honest and faithful and did everything he was supposed to do. Finally, they said to one another, "We will never be able to bring any charge against Daniel, unless it has to do with his religion." They all went to the king and said, "Your Majesty, we hope you live forever. All of your officials, leaders, advisors, and governors agree that you should make a law forbidding anyone to pray to any god or human except you for the next 30 days. Everyone who disobeys this law must be thrown into a pit of lions. Order this to be written and then sign it so it cannot be changed, just as no written law of the Medes and Persians can be changed." So King Darius made the law and had it written down. Daniel heard about the law, but when he returned home, he went upstairs and prayed in front of the window that faced Jerusalem. In the same way that he had always done, he knelt down in prayer 3 times a day, giving thanks to God. The men who had spoken to the king watched Daniel and saw him praying to his God for help. They went back to the king and said, Didn't you make a law that forbids anyone to pray to any god or human except you for the next 30 days? And doesn't the law say that everyone who disobeys it will be thrown into a pit of lions?" "Yes, that's the law I made." The king agreed. "And just like all written laws of the Medes and Persians, it cannot be changed." The men then told the king, "That Jew named Daniel, who was brought here as a captive, refuses to obey you or the law that you ordered to be written. And he still prays to his God 3 times a day." The king was really upset to hear about this, and for the rest of the day he tried to think how he could save Daniel. At sunset, the men returned and said, "Your Majesty, remember that no written law of the Medes and Persians can be changed, not even by the king." So Darius ordered Daniel to be brought out and thrown into a pit of lions. But he said to Daniel, "You have been faithful to your God, and I pray that he will rescue you." A stone was rolled over the pit, and it was sealed. Then Darius and his officials stamped the seal to show that no one should let Daniel out. All night long the king could not sleep. He did not eat anything, and he would not let anyone come in to entertain him.
At daybreak, the king got up and ran to the pit. He was anxious and shouted, Daniel, you were faithful and served your God. Was he able to save you from the lions? Daniel answered, Your Majesty, I hope you live forever. My God knew that I was innocent, and he sent an angel to keep the lions from eating me. Your Majesty, I have never done anything to hurt you. The king was relieved to hear Daniel's voice, and he gave orders for him to be taken out of the pit. Daniel's faith in his God had kept him from being harmed, and the king ordered the men who had brought charges against Daniel to be thrown into the pit together with their wives and children. But before they even reached the bottom, the lions ripped them to pieces. King Darius then sent this message to all people of every nation and race in the world. Greetings to all of you. I command everyone in my kingdom to worship and honor the God of Daniel. He is the living God, the one who lives forever. His power and his kingdom will never end. He rescues people and sets them free by working great miracles. Daniel's God has rescued him from the power of the lions. All went well for Daniel while Darius was king, and even when Cyrus the Persian ruled. दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। दानियल अध्याय 6। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि ये उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराऊंगा। तब अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विरुद्ध राज्य कार्य के विषय में दोष ढूंढने लगे, परंतु वह तो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, इसलिए वे ऐसा कोई अपराध व दोष पा न सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य से व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कठोरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी आज्ञा पत्र के विषय में उससे कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई मुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा,
तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटकल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और दानियल के बचाव के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, तू जान रख कि मादियों और फरीसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और नींद भी उसको नहीं आई। भोर को वह फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरी भी मैंने कुछ हानि नहीं की। तब राजा ने दानियल के विषय में बहुत आनंदित होकर उसको गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी और दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उसमें हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे में की पेंदी तक न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा कि तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है वह बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। In Daniel chapter 6, there's another story about a king and about Daniel. And the stories in some ways keep showing how stupid these kings are. और यहाँ पर दानियल के 6ठे अध्याय के अंदर एक और राजा की बात वहां पर लिखी गई है और एक और इस ऐसे ही प्रकार की घटना यहाँ पर हम देखे जाते हैं। और हम देखते हैं कि इन सब राजाओं की कहानियों के द्वारा हम समझ पाते हैं कि ये राजा जो है कितने मूर्ख थे अपने समय के अंदर। The king's staff persuade him to make a stupid decree that anyone who makes a petition of any god or human being for 40 days, except of the king, will be thrown into a lion pit. और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा के सभा में जो बैठे हुए जो लोग थे वो राजा को इस प्रकार का
इस प्रकार की बात बताने के लिए या फिर सबको आज्ञा देने के लिए वो लोग मजबूर करते हैं और वो कहते हैं कि अगली 40 दिनों तक जो कोई भी व्यक्ति किसी और परमेश्वर का या फिर किसी और देवी देवता का भजन करेगा, उनकी उपकार स्तुति करेगा, आराधना करेगा, तो वो दंडनीय होगा। The king bans prayer. और वहां पर जो राजा है वो इस विनती को सुनता है। But when Daniel hears about this, he goes to his house in the way that he normally would, where it has its windows open on the top facing Jerusalem. And he got down on his knees and he prayed and gave thanks before his God, because that's what he always did. और यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी में कि ये आज्ञा जब बाहर की जाती है तब फिर भी दानियल जो है वो अपने घर में जाता है। अपने घर में जाके उसकी जो खिड़की जो यरूशलेम के तरफ थी, उस यरूशलेम की तरफ की खिड़की को वो खोलता है और वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि वो यही करता आया था इतने सालों से। Years ago, it used to be the case that in England we had a thing called national service, which was conscription into the army for 2 years when you were aged 18. और कुछ सालों पहले इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इस प्रकार की सेवा थी जिसके अंदर आप राज्य सेवा में जुड़ते हो। मतलब आप 18 साल के हो तो 18 साल के बाद 2 साल के लिए आप वहां की जो सेना है उसमें आप भर्ती होते हो। It was abolished just before I got to the age of 18. और मैं 18 साल का हुआ उससे पहले ही इस जो नियम था उसको हटा दिया गया था। A friend of mine who is a bit older than me didn't escape. और मेरा एक जो मित्र है जो मुझसे थोड़ा ही बड़ा है वो इससे बच नहीं पाया था। For 2 years he shared sleeping quarters with 20 or more other young men without any privacy. और 2 सालों तक उसको दूसरे युवान व्यक्तियों के साथ कोई भी प्रकार की निजता को छोड़ के वहां पर वो 2 साल तक वहां पर उसको रहना पड़ा। And he told me how the only way he felt able to read the Bible and pray each day was to go and sit in the bathroom for longer than was strictly necessary. और यहाँ पर उसने मुझे बताते हुए ये कहा कि एक ही मार्ग था जिससे कि मैं निजता में या फिर अपने अकेलेपन में जाके प्रार्थना करके बाइबल कर सकूं, और वो तो ये था कि मैं जाके शौचालय के अंदर या फिर बाथरूम के अंदर में जाके ज्यादा समय बिताऊं, जो नियुक्त किया गया था उससे ज्यादा समय। Daniel could have prayed in privacy, but he chose not to. दानियल भी शायद व्यक्तिगत रीति से छुप के सबके सामने प्रार्थना नहीं कर सकता था, परंतु उसने वैसा नहीं किया। This story then turns out to pair with the one about his 3 friends. और फिर इस कहानी में हम आगे देखते हैं कि उसके साथ साथ उसके जो 3 मित्र थे वो भी इस कहानी में जुड़ते हैं। That was a story about the danger of being thrown into a red hot furnace. और वो जो कहानी है वो उसके अंदर जो खतरा था वो ये था कि अग्नि की भट्टी में उनको डाल देने वाले थे। This is a story about the threat of being thrown into a lion pit. और ये जो कहानी है इसके अंदर जो डर है या फिर जो खतरा है वो ये है कि सिंहों की बान में उसको डाल देने वाले थे। Both of the stories are funny and larger than life and designed to make fun of the leaders of the emperors. और ये जो दोनों कहानियां हैं वो बहुत ही मजाकिया है और शायद उस समय के जो अगुवे थे या फिर जो राजे थे उन सब का मजाक उड़ाने के लिए इस कहानियों को लिखा गया। The story is realistic about the nature of politics. और राजनीतिक तौर से अगर हम देखें तो ये कहानी बहुत ही सत्य घटना पर आधारित है। There is jealousy among the politicians and wheeling and dealing. और यहाँ पर हम देखते हैं कि सचमुच में राजनेताओं के बीच में भी एक प्रकार की ईर्ष्या होती है और एक दूसरे को इधर-उधर खींचने की काम वो करते हैं। Anyone who does well has to be wary of being stabbed in the back. और जो भी कोई भी अच्छा काम करता है उसे हमेशा अपने पीठ में खंजर खाने की तैयारी के साथ ही आगे बढ़ना होता है। A king or a president or a prime minister has to be wary of being manipulated by the people who are supposed to be his servants. और कोई भी राजा या फिर कोई भी राष्ट्रपति या फिर कोई भी जो मुख्यमंत्री है उसे हमेशा इस
चिंता के साथ और इस बात के साथ चलना पड़ता है कि उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले हैं वो उसके निर्णयों के ऊपर उसका प्रभाव डालने वाले हैं। What Daniel determines to do is the obverse of what the three young men have to do. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल का जो कार्य था वो उन 3 युवा जो उसके मित्र थे उससे थोड़ा सा विपरीत था। They were under pressure to bow down to something other than God. और उनके ऊपर जो दबाव डाला गया था वो ये था कि वो परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने वे नमन करें। Daniel is here under pressure not to bow down to the real God. और यहाँ पर दानियल के ऊपर जो दबाव डाला गया है वो ये है कि वो जो सच्चा परमेश्वर है उसका नमन न करे। The Jerusalem temple was the place where the Lord had undertaken to live and be there to hear Israel's prayers. और यहाँ पर यरूशलेम का जो मंदिर था वो ऐसा मंदिर था जिसको यहोवा ने चुना था जहां पर वो अपनी उपस्थिति देंगे और वहां से वो परमेश्वर जो है वो इजराइल की प्रार्थनाओं को सुनेंगे। Solomon's prayer at the dedication of the temple envisages Israelites being taken off into exile and praying towards the country and the temple. और जो सुलेमान ने जो समर्पण की प्रार्थना की थी उस समय यरूशलेम के मंदिर के समर्पण के दरमियान वो उस प्रार्थना के साथ जो अभी जो बंदीवान में लेके गए जो जिन लोगों को है उन लोगों की प्रार्थना जो है वो भी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लोग जो है वो मंदिर की तरफ अपना मुंह करके प्रार्थना करते थे। Now there's a danger of worshipping publicly for the sake of other people seeing you and not because you're serious. और यहाँ पर अभी जो खतरा है वो ये है कि कहीं दूसरे किसी लोगों ने आपको प्रार्थना करते हुए आराधना करते हुए देख लिया तो शायद आपकी जान को हानि है। But for Israelites in a foreign country, the danger is the opposite. The temptation is to hide. और यहाँ पर जो इजरायलियों के लिए जो खतरा है वो एकदम विपरीत है। उनका जो परीक्षण है वो ऐसा है कि वो छुप कर करें। Daniel doesn't fall for the temptation. और यहाँ पर जो दानियल है वो इस परीक्षा में गिरता नहीं है। Praying 3 times a day shows how Daniel is committed beyond anything that you could call a legal requirement. और यहाँ पर हम देखते हैं दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसका मतलब ये था कि वो नियम पर संपूर्ण रीति से समर्पित था। As we saw in connection with the story in Daniel chapter 3, the readers would know that not everyone who follows Daniel's example escapes the consequences. और यहाँ पर जिस प्रकार से तीसरे अध्याय की कहानी में हमने देखा था वैसे ही है कि हर एक व्यक्ति जो लोग दानियल का उदाहरण उसके अनुयायी बनते हैं दानियल के उदाहरण के, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसके परिणामों से बच जाएंगे। But it urges us to follow Daniel's example anyway. परंतु कोई भी रीति से हमें ये हमेशा ये प्रेरणा देते हैं कि दानियल का जो उदाहरण है उसके पीछे हम चले। That's the end of our study of Daniel chapter 6. ये हमारे दानियल के 6वें अध्याय के अध्ययन का अंत है।